Hello students, I welcome you all on your PDA education. So today I am going to give you one more job update. So that is BDL, so that is Bharat Dynamics Limited. You can see in this advertisement. So BDL that is a mini Ratna PSU. Okay, और स्टार्ट हुआ था 1970 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. ठीक है, और मैन्युफैक्चर करता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ये बनाता है BDL. एंड now I will say the job positions are very good, and eligible and interested candidates are required to apply online application opens from 4th July at 2 p.m. and closes on 9th July at 11 p.m. ठीक है, तो 4 जुलाई को स्टार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और क्लोज होंगे 19 जुलाई को 11 बजे. ठीक है, तो लास्ट डेट इज़ 19 जुलाई और स्टार्टिंग डेट क्या है 4th जुलाई. ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है. इसके अलावा ये सारी इसकी यूनिट्स हैं, दैट इज़ आई विल से हैदराबाद में यूनिट है, 2 हैदराबाद में हैं. ठीक है, देन विशाखापट्टनम यूनिट है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, अदर देन दिस अमरावती महाराष्ट्र एंड न्यू दिल्ली आल्सो. तो यही हैं इसमें. देन नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज. सो दैट इज जनरल मैनेजर HR, डिप्टी जनरल मैनेजर HR 1 पोस्ट, DGM 3 पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर 2 पोस्ट, assistant manager safety 3 post. Okay, then management trainee electronics, mechanical, electrical, civil, computer science, optics, business development, finance, HR. So these are the number of posts. For electronics these are 12 in number, for mechanical 9, electrical 3, civil 3, computer science 2, optics 1, business development 1, finance 3, HR 3. So total number of vacancies are 46. Okay, and other than this, so this is the reservation you can see. For general, for DGM, so that is 2 posts. For SC, so that is 1. For general, these I will say management trainee post. For general 20, OBC 13, SC 2, ST 3, EWS 4. So this is the I will say very good scale of pay. Okay, so you can see this. And for these management trainee for graduates, I will say for engineers, so these are the posts: mechanical, electronic, electrical, civil, computer science. So this is the package. So that is 10.5 lakhs. And for other position, these are the annual I will say CTC. And other than this, you can check the age limit here for various posts. For GM/HR, age limit is 54, and I will say for assistant manager 35. For management trainees in all the branches, so that is 27 upper age limit. ठीक है, and accordingly the relaxation is given to OBC, SC, ST 30, 32, 32. Okay, and other than this, you can check here that these are the various qualification, post qualification, executive experience. तो ये आपका जो एक्सपीरियंस होगा ये 18 मई तक काउंट होगा. ठीक है, 18 मई तक इसे काउंट किया जाएगा. तो GM/HR के लिए ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सो दैट इज़ फर्स्ट क्लास MBA होना चाहिए, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो HR में, और पर्सनल मैनेजमेंट, और सोशल साइंस, और सोशल वेलफेयर. ओके, of 2 years duration from university, and desirable is graduate in law. Experience कितना होना चाहिए? Minimum 18 years of executive experience after essential qualification in medium or heavy industry, preferably in PSU. Then DGM new project, so first class degree होना चाहिए आपका in engineering technology. ठीक है, so that is mechanical, electrical, electronics, electronics communication, electronics and instrumentation, industrial electronics and production. Desirable is PG diploma in production manufacturing project management. ओके, तो DGM, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में. ठीक है, और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है, और 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन. ठीक है, और डिज़ायरेबल क्या है? PG डिप्लोमा इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Okay, so this is I will say deputy general manager, और experience कितना require है? Minimum 14 years, minimum 14 years, and this is the nature of experience one should have. If any one of your friend is having this much of experience, so you can suggest him. And next one is of medical officer, so minimum 2 years experience is required, MBBS or MSMD. The next one is assistant manager safety. अगर आपका डिग्री है इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं. डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है. तो 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं उन्होंने.
सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, अगर आपने डिग्री किया हुआ है, बी टेक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने अगर एमएससी कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दिस, अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री में और उसके साथ फिर आपको क्या चाहिए होगा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिग्री डिप्लोमा भी चाहिए होगा, एंड उसके अलावा आपको तेलुगु लैंग्वेज इज एसेंशियल। ओके, सो दिस इज आई विल से ए और बी, सो दीज आर डिफरेंट, या तो ए हो या फिर बी हो। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड इज कंपल्सरी। तो डिग्री डिप्लोमा होना कंपल्सरी है इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और नॉलेज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज इज आल्सो एसेंशियल। ओके, सो 2 years फॉर बी टेक कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर बीएससी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, बी टेक के लिए 2 साल हो। ठीक है, और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सो दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, एचआर। सो फर्स्ट क्लास अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास और 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिमिलरली फॉर अदर्स, फॉर मैकेनिकल अगर बी टेक किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, देन इसके अलावा आपने दिस इज़ फॉर आई विल से फाइनेंस एंड दिस इज़ फॉर एचआर, तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास दे आर सेइंग दैट फर्स्ट क्लास आपके पास डिग्री होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री और दूसरा डिग्री, तो इसका मतलब 60% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। 60% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% होना चाहिए एससी एसटी के लिए। ओके, एंड अदर देन दिस, जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको क्या करना होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के टाइम आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। सो यू कैन रीड हियर, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस मार्कशीट्स और मेमोज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आप क्या कर सकते हो, अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं। ठीक है, और जब आपका इंटरव्यू होगा, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है, आई विल से 7th या 8th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो अभी आप 7th में हो या 8th में हो तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड इंटरव्यू के टाइम पर बट आपको डिग्री सबमिट करना पड़ेगा। देन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और इशुएंस ऑफ मार्क एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट शीट्स शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। There shall be no relaxation on this account. Okay, and other than this, बी टेक किसमें हो, अगर मैकेनिकल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने बी टेक मैकेनिकल में किया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल में किया हुआ है, प्रोडक्शन में किया हुआ है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में किया हुआ है, एरोस्पेस में किया हुआ है, एरोनॉटिकल में, अकॉर्डिंगली आप रीड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंस के लिए भी। ओके, एंड अदर देन this, out of the total number of years of experience after essential qualification is required, a candidate working in government department or PSU should possess a minimum of 1 year relevant experience in pay scale of immediate lower post. Similarly, for candidate from private organization applying for a post should possess minimum of 1 year relevant experience with CTC per annum equivalent to the immediate lower post. ठीक है, तो इससे जो भी ये पोस्ट इन्होंने मेंशन की है, इससे जो इमीडिएट लोअर पोस्ट है, अगर आप उस पर काम कर चुके हैं और आपका 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये है जो भी वर्किंग जो पर्सनस हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, ये भी आपको अप्लाई करते हुए चेक कर लेना है। ओके, अब इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने बताया हुआ है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है या कोई ट्रेनिंग की है आपने या इंडस्ट्रियल वोकेशन अप्रेंटिसशिप की है, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस है, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स हु हैव परस्यूड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा मस्ट मेंशन डिप्लोमा डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया है देन आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर मैंने डिप्लोमा करके मैं डिग्री में एंटर हुआ हूँ, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जो ये पोस्ट हैं जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है, एंड ये आप देख सकते हैं सारा क्राइटेरिया 1:10। ठीक है, तो 1 सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को पोल किया जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग किस पे होगी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉलोड बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफिकेशन एंड एज। तो इनका क्या होगा, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ जी, सो दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग
Next is, so that was for GM HR, DGM new project, medical officer and assistant manager safety. हाँ जी, मैनेजमेंट ट्रेनी. सो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू. ठीक है, तो रिटन टेस्ट के बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी और इंटरव्यू भी होगा. तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो इसमें आपको अपीयर करना होगा. एडमिट कार्ड आप यहाँ से इनकी BDL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट 1 ईयर तक आप यूज़ करेंगे. तो जो CBT होगा विल बी ऑफ 2 आवर्स. ये जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, सो दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स. ठीक है, तो इसमें 150 MCQ रहने वाले हैं. ठीक है, और पार्ट 1 में 100 MCQ होंगे ऑन टेक्निकल, आई विल से जो भी आपका टेक्निकल जो भी ब्रांच है, स्पेसिफिक ब्रांच है. और पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ. ठीक है, ऑन जनरल एप्टीट्यूड. तो 50 क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक के और 100 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल के, जो भी आपके ब्रांच से रिलेटेड होंगे. देन उसके बाद क्या वेटेज दी जाएगी, टेस्ट के मार्क्स को 85% वेटेज दी जाएगी और इंटरव्यू के मार्क्स को कितनी वेटेज दी जाएगी, सो दैट इज 15%. क्लियर है, तो इंटरव्यू के मार्क्स को 15% और टेस्ट के मार्क्स को 85% वेटेज दी जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए. देन अदर देन दिस you can see here cut-off marks in each discipline will be determined keeping in view up to 7:1 candidate is to post ratio. ठीक है, तो अब इसमें जैसे इंटरव्यू के टाइम पर क्या होगा, 1 वैकेंसी के लिए 7 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, सो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड सिटीज़ में ऐड और डिलीट सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड. ओके, तो जितना एप्लीकेशन आएगा उसके हिसाब से सेंटर बना दिए जाएंगे. ओके, देन इसके अलावा पे एंड पर्क्स आर वेरी गुड. आई विल से यू मस्ट अप्लाई इफ़ यू आर एलिजिबल एंड दिस इज़ ऑलरेडी मैं सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुका हूँ. एंड अदर देन दिस एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, सो दैट इज़ ₹500. ओके, और जो SC ST PWD एक्स सर्विस मैन है या इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं BDL के, उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना है, तो फ्री है उनके लिए. बट आई विल से जो भी जनरल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं स्टूडेंट्स, EWS से, तो उनके लिए ₹500 फीस रखा है इसमें. सो एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल एंड दीज आर द जनरल कंडीशंस वन मस्ट रीड. एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन 18 मई 2021. तो 18 मई तक आपके पास ये एज काउंट की जाएगी, क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी और आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा. ओके, and other than this you can read these instructions. OBC सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है फॉर्मेट, दैट इज़ यहाँ की वेबसाइट पर है इस लिंक पर. एंड सो दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. आप ये देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होंगे अप्लाई करते हुए. ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई वो उन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब ओपन हो रही है, 4 जुलाई से, और क्लोज कब हो जाएंगी, सो दैट इज़ ऑन 19 जुलाई. ओके, देन उसके बाद उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप शुड बी सेव्ड ऑन द लोकल सिस्टम फॉर फ्यूचर प्रिंटिंग और रेफरेंस. देन कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मैनेजमेंट ट्रेनी शुड डाउनलोड द बायोडाटा परफॉर्मा. ठीक है, तो जो मैंने जनरल मैनेजर और DGM की जो पोस्ट बताई हैं, तो वो यहाँ से बायोडाटा परफॉर्मा क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ फॉरवर्ड द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट टू दिस एड्रेस. तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है. एंड यहाँ पर 27 जुलाई तक आपको क्या करने हैं, जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं विद एप्लीकेशन फॉर्म आपको 27 जुलाई तक सेंड करने हैं इस एड्रेस पर. ओके, एंड एनवलप पर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बीइंग अप्लाइड इन बोल्ड लेटर्स, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है. And other than this you can read other instructions also. So these are the important dates for us. So that is 4th जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और क्लोज होगा 19 जुलाई को. हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको 27 जुलाई तक सेंड करने हैं, जो एड्रेस दिया गया. देन उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा. ओके, सो दिस इज़ आई विल से. तो स्टूडेंट्स ये एडवर्टाइजमेंट हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी ने BTech किया हुआ है इन ब्रांचेज में, आई विल से जो भी ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, तो ये अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योरpedia
education.